Hello student, in the sequence of online classes today I am going to discuss one of the most important topic for class 10th and class 11th. The chapter name is excretion. Okay. Firstly we have to know the definition of this one, excretion. Many types of activities takes place in our body or occurs in our body. Some of the activities responsible for the production of useful substance like energy, you can say energy, and some of the activities are harmful. Means by the result of these type of activities, a metabolic activities, some harmful substance like urea is produced in our body, and urea must be eliminated from our body, otherwise it may be harms our body, because urea is a toxic substance, as you know. So the responsibility to remove out the excretory product urea is upon excretory system. किसके ऊपर होती है ये रिस्पॉन्सिबिलिटी? हमारे एक्सक्रीटरी सिस्टम के ऊपर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि ये एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट यूरिया इसको एलिमिनेट करना फ्रॉम आवर बॉडी. एंड excretory system also responsible for the regulation of ionic balance and water, and this process is known as osmoregulation. बॉडी में आयन एंड वाटर के बैलेंस को बनाए रखने में हमारे excretory सिस्टम का ही रोल होता है. और क्या रोल होता है? जो यूरिया का फॉर्मेशन होता है उसको excrete आउट करने का. These two function is very important for excretory system. So we have to know the definition. Excretion, the process of removing out harmful metabolic waste product from the body is called excretion. हमारी बॉडी से जो वेस्ट प्रोडक्ट हैं, वेस्ट मेटाबॉलिक हार्मफुल प्रोडक्ट्स हैं, उनको बॉडी से बाहर करने की जो प्रोसेस होती है उसको हम क्या कहते हैं? एक्सक्रीशन. दिस इज नोन एज एक्सक्रीशन. एंड नाउ टाइप्स ऑफ एक्सक्रीशन इन डिफरेंट एनिमल्स. एनिमल्स में, डिफरेंट एनिमल में एक्सक्रीशन के डिफरेंट टाइप्स होते हैं. फर्स्ट वन इज एमिनोटेलिज्म. व्हाट इज एमिनोटेलिज्म? वी हैव टू नो दैट एमिनोटेलिज्म इज द फिनोमिना ऑफ एलिमिनेशन ऑफ वेस्टेज mainly in the form of ammonia, mainly in the form of ammonia. And those type of animal which excrete ammonia as a nitrogenous waste is known as aminotelic animal. तो ऐसे एनिमल जिनमें नाइट्रोजिनस वेस्ट क्या होता है? अमोनिया होता है. ऐसे एनिमल्स को हम क्या कहते हैं? एमिनोटेलिक एनिमल्स. दीज एनिमल्स आर नोन एज एमिनोटेलिक एनिमल्स एंड फिनोमिना इज नोन एज एमिनोटेलिज्म. एग्जाम्पल अमीबा एंड मैनी फिशेस. फिशेस आल्सो एग्जाम्पल ऑफ मैनी फिशेस, एग्जाम्पल ऑफ एमिनोटेलिज्म. एंड नेक्स्ट वन, नेक्स्ट टाइप ऑफ एक्सक्रीशन इज यूरियोटेलिज्म. दिस वन इज इंपॉर्टेंट फॉर अस. यूरियोटेलिज्म. Ureotelism is the phenomena of elimination of waste product mainly in the form of urea, mainly in the form of urea. Those animals which excrete urea as a nitrogenous waste are called ureotelic animal. क्या कहते हैं? ureotelic एनिमल. ऐसे एनिमल्स जिसमें यूरिया एज ए नाइट्रोजिनस वेस्ट होता है, वो ऐसे एनिमल्स यूरियोटेलिक एनिमल्स कहते हैं. एंड द
The phenomena is known as ureotelism. Example, mammals, we are. And next one, uricotelism. What is uricotelism? Uricotelism is the phenomena of elimination of waste product mainly in the form of uric acid. Mainly in the form of uric acid. And those animals which excrete uric acid as a nitrogenous waste are known as uricotelic animal. Don't be confused in ureotelic and uricotelic. Uricotelic means excretory product uric acid. Ureotelism means nitrogenous waste is urea, and aminotelism नाइट्रोजनस वेस्ट क्या होता है इसमें बेटा? अमोनिया, सिंपली. ओके, नेक्स्ट आई एम गोइंग टू डिस्कस एक्सक्रीशन इन ह्यूमन बीइंग. देखिए, एक्सक्रीटरी सिस्टम जो हमारी बॉडी का है उसका एक ही काम है, ब्लड को फिल्टर करना और फॉर्मेशन ऑफ यूरिन. यूरिन का फॉर्मेशन करना, ब्लड, और ये कब होगा? जब ब्लड फिल्टर होगा. एंड यू हैव टू नो दैट यूरिया कहाँ से आ रही है और ये ब्लड में कैसे आ रही है. फिल्ट्रेशन प्रोसेस हो रही है, तो ये कैसे हो रही है और इसमें यूरिया आ रहा है जिसको हम बाहर निकालने का काम करते हैं बाय द हेल्प ऑफ एक्सक्रीटरी सिस्टम. तो ये कैसे ऑपरेट होती है ये प्रोसेस, इसको जानना जरूरी है. सो यूरिया इज प्रोड्यूस्ड मेनली इन लीवर. कहाँ प्रोड्यूस होती है? लीवर में, बाय द डीकम्पोजिशन ऑफ अनयूज्ड प्रोटीन. डीकम्पोजिशन ऑफ unused protein. So urea is proteins. Urea is formed by the decomposition of unused proteins mainly in the liver, and this urea comes in the contact of the blood, and it's the responsibility of excretory system to remove out the urea from the blood. Otherwise it may be very dangerous for our body or our system. Okay, so now the blood comes in a plant. This is a plant. ऐसे हम पढ़ते हैं बिल्कुल just like a story. It is a plant which is inbuilt in our system, in our body. Name is excretory system. Firstly we have to know what are the main organ of excretory system. देखिए, किडनी एंड यूरेटर एंड यूरिनरी ब्लैडर एंड यूरेथ्रा. तो फर्स्टली ब्लड इंटर करेगा कहाँ? किडनी में. आफ्टर दैट इसके अंदर कोई ना कोई प्रोसेस होती होगी जिस प्रोसेस के थ्रू यूरिया को एलिमिनेट किया जाता है. आफ्टर दैट वो जो सब्सटेंस होता है उसको रिमूव आउट किया जाता है. इसी के बारे में हमको पढ़ना है. देखते हैं. आर्टरा, हियर्स द ब्लड कम्स इनटू द किडनी एंड दिस ब्लड रीच इन यूरिया. दिस ब्लड रीच इन यूरिया एंड किडनी इज ए filtration unit, you can say. Primary organ for the excretion is kidney, and here the blood gets filter and urine forms in kidney. Now the urine comes in a pipe like structure which is arises from the kidney. फिगर में देखिए, this one known as, this pipe like structure known as ureter. तो what is the function of the ureter? Transport urine towards urinary bladder. कहाँ से? From the kidney. Kidney
produces urine, and urine now goes into the urinary bladder with the help of a pipe like structure which is known as ureter. ओके, तो फर्स्टली ब्लड आया और ब्लड में बेटा क्या था, यूरिया रिच था ब्लड, यूरिया रिच, and it enters into the kidney, and kidney is primary organ, or here many filtration units are present which is responsible for the production of the urine, and now urine is produced in kidney and urine goes towards urinary bladder with the help of ureter. And what is the function of ureter? Transport urine towards urinary bladder. Now urine enters, now urine reach in urinary bladder, and urinary bladder is a sac like pear shaped structure, muscular structure which temporarily stores the urine, not permanent. temporary urine को क्या करता है, it stores urine temporary, and now a small opening arises from the urinary bladder which is known as urethra, and urethra function of urethra is transport urine आउट ऑफ द बॉडी, यूरिन को बॉडी से बाहर एलिमिनेट करने में यूरेथ्रा हेल्प करता है. सो नाउ, और जो ब्लड जिससे क्या हो चुका है, बाहर हो चुका है यूरिया, और वो ब्लड इंटर कर जाता है वेना कावा के थ्रू बॉडी में. ओके, सो दिस इज अ प्राइमरी फंक्शन ऑफ एक्सक्रीटरी सिस्टम. ब्लड आता है, आफ्टर दैट उसका फिल्ट्रेशन किया जाता है, यूरिन फॉर्म होता है, और यूरिन को यूरेटर की हेल्प से यूरिनरी ब्लैडर में और फिर यूरेथ्रा के थ्रू बॉडी के बाहर एलिमिनेट कर दिया जाता है. अब यूरिया के साथ में सम अमाउंट ऑफ वाटर भी होता है, सम अमाउंट्स ऑफ सॉल्ट्स भी होता है, ठीक है, उसको भी एलिमिनेट कर दिया जाता है. मॉडरेट अमाउंट ऑफ वाटर प्रेजेंट होता है हमारे यूरिन में. नाउ I am going to discuss kidney which is known as filtration plant, जिसको हम filtration plant कह सकते हैं. प्लांट बॉटनी वाला प्लांट नहीं होता है, ठीक है. फिल्ट्रेशन यूनिट किसके अंदर प्रेजेंट होती हैं, किडनी के अंदर प्रेजेंट होती है. तो फर्स्टली हम इसका स्ट्रक्चर देखते हैं कि इसमें क्या क्या होता है. आप देख रहे हैं कि इसके बाहर एक टफ कैप्सूल की कवरिंग होती है, प्रोटेक्टिव कवरिंग प्रेजेंट होती है किडनी के बाहर, एंड एक पोर्शन आपको अलग दिख रहा है और एक पोर्शन थोड़ा अलग दिख रहा है. देखिए, बायोलॉजी में कहीं भी अगर पेरिफेरी वाला हिस्सा डिफरेंट होता है और इंटरनली जो हिस्सा प्रेजेंट है वो डिफरेंट होता है, तो बाहर वाले को कॉर्टेक्स कहते हैं और अंदर वाले को क्या कहते हैं, मेडुला कह देते हैं. ये हम ब्रेन में भी देखेंगे, कॉर्टेक्स मेडुला प्रेजेंट होते हैं, और कई सारी एंडोक्राइन ग्लैंड्स भी होती हैं, ठीक है, उसमें कॉर्टेक्स एंड मेडुला रीजन प्रेजेंट होता है. नाउ हियर दिस पोर्शन इज नोन एज कॉर्टेक्स और कॉर्टिकल पोर्शन ऑफ द किडनी, दिस वन, एंड दिस पोर्शन which is known as medullary region. इसको क्या कहते हैं, medullary region, and this is cortex region of kidney. And here the gap is present between the medullary region which is also known as medullary pyramid. इनको medullary pyramid भी कहते हैं. क्या कहते हैं, medullary pyramid कहते हैं. And between two medullary pyramid some gap present which is known as column of Bertin. क्या कहते हैं, column of Bertin. It is known as column of Bertin which is present between two medullary pyramid, and it is the part of cortex region, you can say. Not it is the part of
मेडुलरी रीजन, बिकॉज द स्ट्रक्चर जो ये स्ट्रक्चर कॉर्टेक्स का जो आप देख रहे हैं, जिसको हम कॉलम ऑफ बर्टीन कह रहे हैं, ये स्ट्रक्चर अंदर की तरफ इनबिल्ड है, धसा हुआ स्ट्रक्चर है दो मेडुला के बीच में, दो पिरामिड के बीच में। मेडुलरी पिरामिड या रीनल पिरामिड, रीनल वर्ड जो हम यूज़ करते हैं वो किडनी के लिए यूज़ करते हैं, जैसे हम हिपैटिक वर्ड यूज़ करते हैं जनरली लीवर के लिए यूज़ करते हैं, वैसे ही रीनल वर्ड किडनी के लिए यूज़ किया जाता है। डोंट बी कंफ्यूज्ड व्हाट इज रीनल। Renal pyramid or medullary pyramid, and here now a notch like structure is present, notch, which is known as hilum. This structure is known as hilum. With the help of a concave structure, देखिए अंदर की तरफ ये जो आपको पार्ट दिख रहा है कुछ अंदर की तरफ धसा हुआ है, ठीक है, दिस इज नोन एज अ हाइलम। एंड with the help of this opening the renal artery enters in kidney and renal vein comes out from the kidney and ureter also comes out from the kidney. Okay, so hilum is a notch like structure, concave, it is present the concave surface of the kidney, अंदर की तरफ ये आपको दिख रहा है, और इसके थ्रू ही रीनल आर्टरी किडनी में इंटर करती है, रीनल वेन किडनी से बाहर आती है और यूरेटर बाहर आता है। एंड मेनी नर्व सप्लाई आल्सो इंटर, नर्व सप्लाई आल्सो इंटर बाय दिस ओपनिंग विच इज नोन एज हाइलम। इसको क्या कहते हैं? हाइलम। अब देखते हैं अंदर की तरफ क्या प्रेजेंट है। नाउ अंदर की तरफ आपको एक मेडुलरी पिरामिड को हम डिस्कस करने जा रहे हैं। इस मेडुलरी पिरामिड के अंदर प्रेजेंट होता है नेफ्रॉन। नेफ्रॉन आर यूरिनरी फेरस ट्यूब्यूल विच इज द फंक्शनल यूनिट ऑफ द किडनी, विच इज आल्सो नोन एज फंक्शनल यूनिट्स ऑफ द किडनी। क्यों कहते हैं? क्योंकि यही फिल्ट्रेशन यूनिट्स हैं जिनके थ्रू ब्लड को क्या किया जाता है? फिल्टर किया जाता है और यूरिन का फॉर्मेशन किया जाता है। एंड दीज नेफ्रॉन्स प्रेजेंट इन मेडुलरी पिरामिड्स। मेडुलरी पिरामिड्स में क्या प्रेजेंट होते हैं? नेफ्रॉन प्रेजेंट होते हैं। इन ईच किडनी 1.2 मिलियन ऑफ नेफ्रॉन इज present in each kidney. Okay, and nephron helps in the production of the urine, और इसके आसपास सप्लाई होती है, ब्लड की सप्लाई प्रेजेंट होती है, और ब्लड की सप्लाई नहीं प्रेजेंट होगी तो फिल्ट्रेशन कैसे होगा? अभी हम जब इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे नेफ्रॉन को, तब हम इसको देखेंगे। ओके, एंड अब अभी ये मान लीजिए कि यूरिन forms with the help of nephron. Okay, now this urine must be eliminated from the kidney, otherwise ये यूरिन किडनी में क्या हो जाएगा? भर जाएगा और किडनी फंक्शन नहीं कर पाएगी। इसको एलिमिनेट करना बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। कैसे एलिमिनेट हो गए? यहाँ पर आपको कुछ स्मॉल पाइप लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है, ठीक है, जिनको हम कहते हैं माइनर कैलिक्स। क्या कहते हैं? माइनर कैलिक्स। और ये माइनर कैलिक्स यहाँ पर देखिए, ये माइनर कैलिक्स, और ये आगे चल के ओपन होते हैं मेजर कैलिक्स में। किस में? मेजर कैलिक्स में। ये देखिए, यहां पर देख लीजिए, दिस वन माइनर कैलिक्स, एंड आफ्टर दैट ये जो लार्ज आपको पाइप लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है, इसको हम कहते हैं मेजर कैलिक्स। क्या कहते हैं? मेजर कैलिक्स। मेजर कैलिक्स, आफ्टर दैट
मेजर कैलिक्स के बाद में आपको जो हिस्सा देखने को मिलता है, जो बड़ा फनल लाइक स्ट्रक्चर होता है, ये दिख रहा है जो ये, दिस वन नोन एज पेल्विस, रीनल पेल्विस। ओके, क्या कहते हैं? रीनल पेल्विस कहते हैं। एक सेकेंड, यहां देखिए आप, minor calyx, major calyx and renal pelvis. These are the pipe-like structure which is responsible for the transportation of the urine which is formed by the urinary ferrous tubule with the help of urinary ferrous tubules. तो minor calyx में ये यूरिन आएगा, आफ्टर दैट मेजर कैलिक्स में आएगा, दिस वन मेजर कैलिक्स, और आफ्टर दैट ये पेल्विस में आएगा, आफ्टर दैट इसको यूरेटर में ट्रांसपोर्ट कर दिया जाएगा, और यूरेटर से कहाँ ये पहुँचेगा? दिस इंटर्स इन यूरिनरी ब्लेडर, आफ्टर दैट यूरेथ्रा, आफ्टर दैट इसको एलिमिनेट कर दिया जाएगा बॉडी से बाहर। तो आपको याद रखना है कहाँ कैसे ये प्रोसेस होती है। फर्स्ट वन, जब यूरिन प्रोड्यूस होगा माइनर कैलिक्स में इंटर करेगा, आफ्टर दैट मेजर कैलिक्स, एंड आफ्टर दैट रीनल पेल्विस, एंड आफ्टर दैट ये कहाँ इंटर करेगा? यूरेटर, आफ्टर दैट यूरिनरी ब्लेडर, और इसके बाद ये इसके बाद यूरेथ्रा, आफ्टर दैट बॉडी से बाहर इसको क्या कर दिया जाएगा? एलिमिनेट कर दिया जाएगा, बाहर कर दिया जाएगा। सो दिस इज द बेसिक फंक्शनिंग स्ट्रक्चर ऑफ द किडनी। एंड देखिए, आर्टरी की सप्लाई भी नेफ्रॉन के आसपास प्रेजेंट है, वीन की भी सप्लाई नेफ्रॉन के आसपास प्रेजेंट है, और आर्टरी की सप्लाई ही रेस्पॉन्सिबल होती है फिल्ट्रेशन के लिए। अगर ब्लड की सप्लाई नेफ्रॉन के आसपास प्रेजेंट नहीं होगी तो फिल्ट्रेशन कैसे हो पाएगा? फिल्ट्रेशन प्रोसेस हो ही नहीं पाएगी। अभी नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर हम देखते हैं, वहाँ पर हम बताएंगे कि कैपिलरीज का कैसे नेटवर्क नेफ्रॉन के चारों ओर प्रेजेंट होता है। तो यूरिन का फॉर्मेशन जब हो जाता है नेफ्रॉन के थ्रू, ये मेडुलरी पिरामिड के थ्रू, तो उसको कैसे पास आउट किया जाता है, इस प्रोसेस को भी हमने समझ लिया। और रीनल आर्टरी का क्या हेल्प होता है, क्योंकि इसमें रिच इन यूरिया होता है, ये इसके अंदर यूरिया ज़्यादा प्रेजेंट होता है, और इसी यूरिया को बाहर करना है। क्यों बाहर करना है? बिकॉज इट इज़ ए टॉक्सिक सब्सटेंस, और बाहर करने के बाद जो इसमें से यूरिन निकल जाएगा तो फिर वो ब्लड रीनल वेन के थ्रू बॉडी को सप्लाई कर दिया जाएगा। ओके, नाउ किडनी के बारे में हमको ये भी जानना पड़ेगा कि इसका वेट कितना होता है, इसका लेंथ कितना होता है, डायमीटर कितना होता है। ओके, सो फर्स्टली आई एम गोइंग टू डिस्कस द वेट ऑफ द किडनी। वेट इज 125 ग्राम टू 170 ग्राम वेट होता है किडनी का। एंड कलर बेसिकली रेडिश ब्राउन, color of kidney reddish brown, and diameter 10 to 12 सेंटीमीटर इसकी लेंथ होती है, हाइट होती है, एंड 5 to 7 सेंटीमीटर इसकी विड्थ होती है, एंड 2.5 to 3 ये इसकी थिकनेस होती है। सेंटीमीटर यहाँ लिख लीजिए, सेंटीमीटर ये थिकनेस होती है। तो वेट ऑफ द किडनी इज 125 ग्राम टू 170 ग्राम, एंड कलर इज रेडिश ब्राउन, एंड डायमीटर 10 to 12 सेंटीमीटर हाइट लेंथ होती है इसकी, एंड 5 to 7 सेंटीमीटर इसकी विड्थ होती है, एंड 2.5 to 3 सेंटीमीटर इज थिकनेस। ओके, एंड हाँ, पोजीशन, this one also important. Where is the position of the kidney? It is present dorsal side in abdominal
cavity. It is present in the dorsal side of in abdominal cavity. Dorsal means backward position, पीछे की तरफ, पीठ का जो हिस्सा होता है डॉर्सल, ठीक है, यहाँ पर आपको नीचे एब्डोमिनल कैविटी के जस्ट पीछे की तरफ आपको देखने को मिलेगा. वेंट्रल साइड हमारा ये हो गया, डॉर्सल साइड बैक का जो हिस्सा होता है उसको हम डॉर्सल साइड कहते हैं. एंड अगर एग्जैक्ट लोकेशन बताना हो किडनी की कहाँ होती है तो आप याद रखिए, लास्ट thoracic vertebrae and third lumbar vertebrae के बीच में. तो इट इज प्रेजेंट बिटवीन द लास्ट thoracic vertebrae एंड थर्ड lumbar vertebrae. इसके बीच में क्या प्रेजेंट होती है, किडनी प्रेजेंट होती है. और कुछ फैक्ट्स हैं किडनी से रिलेटेड, जैसे मेल में किडनी जो होती है वो लिटिल बिट क्या होती है, थोड़ी सी बड़ी होती है इन कंपेरिजन ऑफ फीमेल. ओके, नाउ आई एम गोइंग टू डिस्कस द filtration units which is known as nephron. Nephron are uriniferous tubule. So first one, Bowman's capsule इसमें आपको देखने को मिलेगा, convoluted tubule, Henle's loop, collecting duct and vasa recta and peritubular capillaries network. These are the related structure of nephron or uriniferous tubules. So now come in figure. This one, this structure is known as Bowman's capsule. Bowman's capsule, it is a cup shape structure. देखिए आपको कप जैसा ये स्ट्रक्चर दिख रहा है, एंड इट इज इन डबल वॉल्ड also. It is in double walled structure, cup like structure, which is known as Bowman's capsule, and it is the first end of nephron. और ये कैसा है, कप शेप होता है, याद रखिएगा. एंड इन दिस a capillary network or capillary supply or tuft of capillary present in Bowman's capsule. और ये tuft of capillary कैसे फॉर्म होता है और किस लिए ये फॉर्म होता है ये भी जानना जरूरी है. तो देखते हैं, एफरेंट आर्टियोल जो ब्लड लेकर आ रहा है नेफ्रॉन में, ठीक है, और नेफ्रॉन के कौन से रीजन में, बॉमेंस कैप्सूल के रीजन में, एंड विद द हेल्प ऑफ एफरेंट आर्टियोल इट फॉर्म्स अ नेटवर्क ऑफ कैपिलरी इन द बॉमेंस कैप्सूल विच इज नोन एज ग्लोमेरुलस. क्या कहते हैं, ग्लोमेरुलस. तो बेसिकली ग्लोमेरुलस क्या है, एक कैपिलरी का नेटवर्क है जो बॉमेंस कैप्सूल में प्रेजेंट है. और बॉमेंस कैप्सूल एंड याद रखिएगा, Bowman's capsule and glomerulus, इनको कंबाइंडली बेटा बोलते हैं मैलपिघियन बॉडी. तो जब मैलपिघियन बॉडी आपसे कोई पूछे तो आप बॉमेंस कैप्सूल एंड ग्लोमेरुलस दोनों बताएंगे, ये हिस्सा इसको बोलेंगे मैलपिघियन बॉडी. तो एफरेंट आर्टियोल ब्लड लेकर आता है जिसके थ्रू क्या बनता है, कैपिलरी का नेटवर्क बनता है बॉमेंस कैप्सूल के अंदर, और इसके बाद में इफरेंट आर्टियोल से ब्लड की सप्लाई चारों तरफ नेफ्रॉन के चारों ओर क्या हो जाती है, कर दी जाती है. सप्लाई नेफ्रॉन के चारों ओर, ये सप्लाई जो आप देख रहे हैं, this is the supply of blood, efferent arteriole. And now convoluted tubule, ये कॉन्वुलेटेड ट्यूब्यूल, इसमें दो पार्ट आपको देखने को मिलेंगे, एक प्रॉक्सिमल कॉन्वुलेटेड ट्यूब्यूल, फर्स्ट वन इज proximal convoluted tubule and second one distal convoluted tubule. Second one is distal convoluted tubule. Now come in figure. Here this structure
जो पास में आपको दिख रहा है बाउमेंस कैप्सूल के नियरेस्ट जो आपको पोर्शन दिख रहा है, दिस वन नोन एज प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल. So mainly convoluted tubule consist of two part, proximal convoluted tubule and distal convoluted tubule are known as PCT और DCT. और दूर की तरफ जो हिस्सा आपको दिख रहा है, convoluted means क्या होता है, जो बहुत ज़्यादा क्या हो, मुड़ा हिस्सा हो, उसको convoluted बोलते हैं. एंड लास्ट की तरफ आपको जो दूर की तरफ दिख रहा है वो डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल दिख रहा है. एंड व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द प्रॉक्सिमल एंड डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल? इट हेल्प्स इन द रीएब्जॉर्प्शन एंड सिक्रीशन. किस में हेल्प करता है? ये बेटा रीएब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है और सिक्रीशन में हेल्प करता है. सिक्रीशन. अब आप सोच रहे होंगे रीएब्जॉर्प्शन और सिक्रीशन क्या है? जब हम फॉर्मेशन ऑफ यूरिन बताएंगे आपको, मैकेनिज्म ऑफ यूरिन फॉर्मेशन, तब उसमें सिक्रेशन और रीअब्जॉर्प्शन का रोल आएगा. तो अभी आप इतना याद रखिएगा, पीसीटी और डीसीटी का फंक्शन क्या होता है? फंक्शन यही है, रीअब्जॉर्प्शन और सिक्रेशन में ये हेल्प करते हैं. आफ्टर दैट हेनलेज लूप. एक आपको पोर्शन दिख रहा है जो बिल्कुल यू टर्न जैसा पोर्शन आपको दिख रहा है, दिस इज नोन एज हेनलेज लूप. क्या कहते हैं इसको? हेनलेज लूप कहते हैं. एंड इट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द रीअब्जॉर्प्शन ऑफ द वाटर. वाटर के रीअब्जॉर्प्शन के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है. एंड इसका जो नीचे की ओर आप हिस्सा देख रहे हैं, ये इसको हम कहते हैं descending limb of loop of Henle. और ये पोर्शन ascending limb of loop of Henle. So this one descending limb of loop of Henle and this one ascending limb of loop of Henle. और ये क्या करता है, किस में हेल्प करता है? ये भी वाटर के रीअब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है. क्या फंक्शन होता है इसका? इसको हम मैकेनिज्म ऑफ यूरिन फॉर्मेशन जब बताएंगे तब वहाँ पर अभी इसको समझेंगे. नेक्स्ट टॉपिक हमारा मैकेनिज्म ऑफ यूरिन फॉर्मेशन ही रहेगा. नाउ कलेक्टिंग डक्ट्स. कलेक्टिंग डक्ट्स क्या होती हैं? दिस वन, इसको हम कहते हैं कलेक्टिंग डक्ट्स. एंड मेनी डीसीटी ऑफ नेफ्रॉन. देखिए कई सारे नेफ्रॉन का डीसीटी आके किस में ओपन होता है? कलेक्टिंग डक्ट में. और कलेक्टिंग डक्ट में वो अपना प्रोडक्ट क्या कर देते हैं? सब्सटेंस रिलीज कर देते हैं. फिल्ट्रेट अपना क्या कर देते हैं? रिलीज कर देते हैं. और ये फिल्ट्रेट इसके बाद माइनर कैलिक्स को जाता है, फिर मेजर कैलिक्स, फिर पेल्विस, रीनल पेल्विस, और फिर इसके बाद में यूरेटर और फिर यूरिथ्रा के थ्रू एलिमिनेट कर दिया जाता है. तो ये जो प्रोसेस होती है यूरिन फॉर्मेशन की, इसका सबसे लास्ट आप हिस्सा देख रहे हैं कलेक्टिंग डक्ट्स का. इसमें ही फिल्ट्रेट को क्या कर दिया जाता है? थ्रो कर दिया जाता है, थ्रो आउट कर दिया जाता है, फेंक दिया जाता है, जिसके थ्रू ये बाहर की तरफ एलिमिनेट कर दिया जाता है. तो कई सारे नेफ्रॉन का डीसीटी ओपन होता है इन कलेक्टिंग डक्ट्स. एंड नाउ वॉसा रेक्टा. वॉसा रेक्टा आल्सो इज वेरी इंपॉर्टेंट. वॉसा रेक्टा क्या है? वॉसा रेक्टा इज ए पैरेलल कैपिलरी नेटवर्क प्रेजेंट इन नेफ्रॉन. नेफ्रॉन के पैरेलल जो कैपिलरी का नेटवर्क प्रेजेंट होता है उसको हम क्या कहते हैं? वॉसा रेक्टा कहते हैं. एंड पेरीट्यूबुलर कैपिलरी नेटवर्क, ये क्या है? पेरीट्यूबुलर, PTCN, पेरीट्यूबुलर कैपिलरी नेटवर्क. ये देखिए दिस वन कैपिलरी नेटवर्क जो नेफ्रॉन के पेरीफेरी चारों ओर प्रेजेंट होता है, दिस वन नोन एज पेरीट्यूबुलर कैपिलरी नेटवर्क. ओके, इसको क्या कहते हैं? पेरीट्यूबुलर कैपिलरी नेटवर्क. एंड विथ द हेल्प ऑफ पेरीट्यूबुलर कैपिलरी नेटवर्क द प्रोसेस ऑफ सिक्रीशन एंड द प्रोसेस ऑफ रीअब्जॉर्प्शन अकर्स इन नेफ्रॉन. अगर ये नेटवर्क नहीं प्रेजेंट होगा तो जो यूरिन के फॉर्मेशन की जो प्रोसेस है वो कंप्लीट नहीं हो पाएगी. ओके, नाउ इन नेक्स्ट टॉपिक हम डिस्कस करेंगे फॉर्मेशन ऑफ यूरिन और मैकेनिज्म ऑफ यूरिन फॉर्मेशन. थैंक यू क्लास.